decoupled spectra. So okay, I hope it is clear to you now. Okay, so what I was saying, because of the interaction of the proton, okay, with the carbon atoms, so we are having splitting. So the carbon nuclei that splits depending on the number of neighboring protons. So for example, this carbon is having 3 proton, CH3. So that will give n plus 1 peak. Okay, so it will quadrate the proton with 2. So that will give triplet. So we do decoupling, decoupling of the protons, and with the help of that decoupling, we are having singlet peaks. Okay. So those singlet peaks here observed. Okay. But I told you that during this experimentation, okay, if we are doing proton decoupled spectra, so in that case, we are missing a very important piece of information, that what kind of carbon is it? Yeah, what is the environment of that carbon? How many protons they are attached to that carbon? Okay, so that information we can retain through another experiments, what we call it a off resonance experiment. Okay, so in this case, what we do? So the second frequency, the intensity of second frequency or the decoupling frequency, okay, is kept low, so that the complete decoupling doesn't take place. पूरी decoupling हो रहा है कि वो नहीं होना चाहिए. तो उस केस में then we are getting both the informations. Okay, first the enhancement take place, signal enhancements, but we call it nuclear or Oberhauser enhancements. Okay, so by suppressing the splitting frequency. Okay, so by splitting the frequency or by double irradiating the nuclei and taking it to the saturation state. Okay, so the neighboring nuclei, so that give you enhanced signals. You are getting the enhanced signals. Okay, so in that way we are getting off resonance. We are getting that information. The other source, okay, so other source of getting that information is through depth. Okay, so this is FT based, so Fourier transformation based software is used. Okay, so it's a computer guided pulses, okay, sequence of pulses. So this is basically complex, okay, a complex spectra. So we call it a complex set of experiments, because we call it DEPT. So this is distortionless enhancements. So DEPT is so this is distortionless enhancement by polarization, bipolarization transfer. Okay, so this is D, E, and P and T. So DEPT. Okay. So this is a complex sequence of experiments. Okay. So in which the experiments, okay, the pulse, जो हम pulse दे रहे या frequency supply कर रहे हैं, so that pulse is supplied in a particular sequence. Okay, through a particular angle and through a particular sequence. So again, the detail is very complex. We are not going into that. Okay. So actually, these are 3 different types of experiments. We call it TAP 45, 90, and 135. And basically, what is happening in these experiments? So that is important for us to understand. So when you perform these complex type of experiments, okay, if you are giving those pulses, if आपकी book में detail में दिया हुआ थोड़ा सा, if you want to read it, you can go through it. So when you give that sequence of pulses, okay, कब दे रहे हो आप, क्या आप जो
सीक्वेंस, ठीक है, जो आपने सीक्वेंस या एफटी दिया आपने न्यूक्लियस को रेजोनेंस में लाने के लिए, ठीक है, फिर यू गिव ए गैप, गैप के बाद दूसरे स्कैन के लिए आप अगेन गिव सेकंड सीक्वेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, सो दैट वन इज मेंटेन, ठीक है, फर्स्ट तो आ गया, लेकिन जो सेकंड सीक्वेंस दे रहे हैं आप, डीकपलिंग सीक्वेंस दे रहे हैं, ठीक है, सो दैट सीक्वेंस, सो दैट टाइम इंटरवल, ठीक है, फिक्स्ड टाइम इंटरवल है, सो फिक्स टाइम इंटरवल के साथ आप अगर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के साथ देते हो कि आप दूसरे वाली एफटी के साथ दे रहे हैं, ठीक है, और फिर आप कुछ टाइम के लिए बंद कर रहे हैं उसको भी टिल द एक्विजिशन टाइम, ठीक है, जब आपने कह दिया, और जो आपका जो डिलेड टाइम है, जब जिस टाइम पीरियड में रिलैक्सेशन हो रही है उसमें भी आप कंटिन्यू रख रहे हो उस डीकपलिंग फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इन दोस सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, किस एंगल से दे रहे हो आपको पल्स को, ठीक है, किस इंटरवल के पास आप दे रहे हो, ठीक है, सो दोस सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स under those conditions the carbon nuclei which are containing a different set of hydrogens, ठीक है, they behave differently, ठीक है, कि जब आप ये सीक्वेंस अप्लाई करते हो, ठीक है, डेप्थ एक्सपेरिमेंट्स में, so the nuclei which is containing 3 hydrogen atoms, 2 hydrogen atom and a single hydrogen atom, and which is not containing even a single hydrogen, ठीक है, so all these nuclei they behave differently, वो अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है, एंड अगेन बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर, जो उनका जो इमिशंस पैटर्न है, बेस्ड ऑन दैट द कंप्यूटर इज इंटेलिजेंट एनफ टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कार्बन, what type of carbon is, whether it is containing a 3 hydrogen atom, whether it is containing a 2 hydrogen atom or single hydrogen atom or no hydrogen atom, okay, so that computer, so it can identify it, ठीक है, और जो आपका सॉफ्टवेयर या एफटी सीक्वेंसेस आप यूज कर रहे हो वो आइडेंटिफाई करेगा और उसके बेसिस पे इट कैन सेग्रीगेट, ठीक है, सो ये तो है C13, जैसे हमने ये बोला कि लेट अस सपोज दिस इज CH2 1 4 3 4, so let us this is 1, this is carbon number 2, this is carbon number 3 and carbon number 4, so this will be most dishielded, carboxylic acid है most dishielded around 170 के आसपास आएगा, carbon number 1 है, then we are having carbon number 2, because one chlorine atom is attached to this one, इसके साथ एक chlorine attached है, ठीक है, तो ये carbon number 2 है, then carbon number 3 and carbon number 4, so most shielded one, ठीक है, ये carbon number 4 आ गया, ठीक है, so this is the simple C13 spectra what we observe under decoupling conditions, ठीक है, so when you do depth 45 experiment, so depth 45 experiments, so in that case, so you will have similar type of spectra, except one difference, that this peak at 170 is missing, ठीक है, so in depth 45, ये वाला जो स्पेक्ट्रल हो गया, in this peak, so the quaternary carbon did not appear, जो क्वाटर्नरी कार्बन है जिसके साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, ठीक है, वो कार्बन नहीं आएगा आपको, ठीक है, वो कार्बन डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है, सो व्हाट डज इट मीन कि एक जब आप C13 और डेप्थ 45 का कंपैरिजन करोगे, ठीक है, सो इन दैट केस you will be able to identify the quaternary carbon which are not containing any hydrogen atom, तो आपको वो पता चल जाएगा कि ये इस कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, ये क्वाटर्नरी कार्बन है, okay, then the next experiment is depth 90, okay, so depth 90 के केस में, okay, so it will give you only one type of hydrogens, sorry, one type of carbon, okay, and this is CH, ठीक है, so depth 90 में जो सीक्वेंस है
So this will give you only one type of carbon which is containing only single hydrogen. सिर्फ एक हाइड्रोजन अगर अटैच्ड है, ठीक है, सिर्फ वही सिग्नल आएगा, बाकी सिग्नल को पिक नहीं करेगा, ठीक है। जो हमारा सॉफ्टवेयर जब ये एक्सपेरिमेंट किया हमने, उन सिग्नल्स को नहीं उठाएगा, सिर्फ उन सिग्नल्स को पिक करेगा जिन कार्बन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच है। So this is depth 90 degree. So again, now, so here you are not clear. यहाँ पे आपके जो पीक्स आ रही है, इन पीक्स में आपको कोई पता नहीं है कि कौन सा कार्बन प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है। लेकिन यहाँ से आपको अब पता चल गया कि ये वाला कार्बन डेप्थ 45 में नहीं आ रहा है, इट्स इट्स क्वार्टरनरी कार्बन। इनमें से 2, 3 और 4, इनमें से सिर्फ एक पीक्स आ रही है हमारे पास, ठीक है। So we are having okay, I will repeat it again. So we are having CH only here. Okay, then the next one is 135. Okay, so in 135 we are having two phases. दो तरह के phases आएंगे, ठीक है। And the two phases are कि आपके जो एक तरह के, ठीक है, प्रोटॉन्स है, ठीक है, which are containing odd number of hydrogens, ठीक है। तो CH और CH3 है, वो एक तरफ आएंगे आपके, ठीक है। So this one is so 4 and 2. So this is carbon number 4, this is carbon number 2, and 3 will be in the reverse phase, ठीक है। तो जो डेप्थ 135 है, डेप्थ 135, ये जो कौन सा है, इस केस में वी आर हैविंग सिग्नल्स इन डिफरेंट फेजेस, दो अलग अलग फेजेस में आएंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड, ठीक है, ऑड और इवन है, ठीक है। तो जैसे एक हाइड्रोजन जनरली आपके पास या तो 1, 2 और 3 हाइड्रोजन हो सकते हैं कार्बन के साथ या पार्टनर, ठीक है। तो हमारे पास ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, आइदर इट विल बी CH3 CH2 CH और कार्बन पार्टनर कार्बन, ठीक है। तो डेप्थ 135 में तो बाकी तो सिग्नल मिसिंग रहेंगे, ठीक है, वो क्वार्टरनरी कार्बन नहीं आएगा। तो इस केस में वी आर हैविंग दिस कार्बन इन टू फेजेस, तो या तो वो अपोजिट फेज में आएंगे, ये तो CH3 ऊपर आएगा और CH2 नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, जैसे नेगेटिव पीक आती है, या अपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आप सॉफ्टवेयर को ट्यून करोगे या उसको एडजस्ट करोगे, उसके बेसिस पे you will get this peak, ठीक है। सो अब इस केस में आपके पास CH और CH3 आ गया और CH2 नीचे की तरफ आ गया। अब CH आपको पता है CH कौन सा है, ठीक है, कि यहाँ पे जो डेप्थ 90 में सिर्फ CH है, CH3 नहीं है, डेप्थ 90 में सिर्फ CH आ रहा है। तो वहां से आप CH आपको पता है कि ये वाला जो सिग्नल है, सो दिस वन इज CH। सो अब ये एक्स्ट्रा सिग्नल आ रहा है, इट मींस इट विल डेफिनेटली बी CH3। अगर CH होता तो यहाँ पे भी आता, डेप्थ 90 में भी आता, ठीक है। और जो दोनों के अपोजिट जा रहा है, क्योंकि CH है तो ऊपर सिर्फ CH और CH3 होगा, जो उसके अपोजिट जा रहा है दैट विल बी डेफिनेटली CH2, तो ये CH2 नीचे आ रहा है, ठीक है। सो अगेन, ठीक है, लिसन केयरफुली, व्हाट आई एम सेइंग इज, सो डेप्थ एक्सपेरिमेंट्स इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कार्बन एटम्स, कि आपके पास कौन से तरह का कार्बन एटम है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है डेप्थ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ सीक्वेंसेस, जहां पे जो हाइड्रोजन्स है, सॉरी जो कार्बन्स है, ठीक है, they show different phases, वो different phase शो करते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दोस, ठीक है। So the software or the computer that picks up these signals, and the computer can segregate those signals. आपका प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन और टर्शियरी कार्बन है, उसको वो सेग्रीगेट कर सकता है, उसको डिफरेंशिएट कर सकता है, ठीक है। सो these are basically the different pulses, different sequences, different set of experiments। तो टैब में तो पहले C13 में देख लिया हमने, तो C13 में हमारे पास सारे के सारे कार्बन आ जाएंगे when you are having a proton decoupled spectrum। तो उस केस में we are having all the carbons एक सीक्वेंस में आ जाएंगे, ठीक है। डेप्थ 45 में you are having all the spectra but
the quaternary carbon is missing. ठीक है, वो quaternary carbon को depth 45 वो quaternary carbon को pick नहीं करेगा. It means कि यहाँ से आप इन दोनों को compare C13 और depth 45 को compare करके you can identify the quaternary carbon कि कौन कौन से quaternary carbon है उनको identify कर लोगे आप. Then depth 90. So depth 90 में depth 90 will pick only one type of carbon. ठीक है, उसमें मिसिंग था, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों आएंगे, क्वाटरनरी नहीं आएगा, क्वाटरनरी कार्बन नहीं आएगा. ठीक है, डेप्थ 90 में सिर्फ वी आर हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ कार्बन व्हिच इज कंटेनिंग सिंगल हाइड्रोजन एटम. सिर्फ जो CH ग्रुप है, सिर्फ वही आएगा, उसी का आएगा. ठीक है, और डेप्थ 135. ठीक है, तो अब डेप्थ 45 से हम क्वाटरनरी कार्बन को आइडेंटिफाई कर लेंगे. डेप्थ 90 से हम कार्बन को जो जिसके साथ सिंगल हाइड्रोजन अटैच है. ठीक है, वैसे कार्बन को अटैच कर आइडेंटिफाई कर लेंगे जो सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन अटैच है. ठीक है, तो उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे. और डेप्थ 135 से, सो डेप्थ 135 है इस केस में. ठीक है, so we are having different signal into different phases. The odd or even number of hydrogen atom है. CH और CH3 एक तरफ आएगा सिग्नल और CH2 दूसरी तरफ आएगा, अपोजिट फेज में आएगा उसका सिग्नल. ठीक है, तो वहां पे आप वो CH2 आइडेंटिफाई कर लिया. ठीक है, तो क्वाटरनरी कार्बन आइडेंटिफाई हो गया. ठीक है, डेप्थ 145 से, डेप्थ 90 से तो ये क्वाटरनरी कार्बन आइडेंटिफाई हो गया ये. ठीक है, इसके साथ कोई हड़बड़ी नहीं है. और डेप्थ 90 से आपने कार्बन आइडेंटिफाई कर लिया CH. ठीक है, जिसके साथ सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन है. ठीक है, और डेप्थ 135 से इसने CH2 ग्रुप को अलग फेज में दिखा दिया आपको. CH से इन कंपैरिजन टू CH से CH2 को अलग फेज में दिखा दिया. ठीक है, तो तीन तरह के कार्बन आए और बाकी जो बचे. ठीक है, सो इट मींस बाकी आप तीनों तरह के आइडेंटिफाई हो गए और बाकी जो बचेंगे सो दीज विल बी CH3 जो जिसके साथ तीन हाइड्रोजन एटम अटैच है. सो दीज विल बी CH3. ठीक है, सो एम आई क्लियर टू यू ऑल? और इसमें किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन है इसमें? अगर किसी को नहीं पता चला हो कुछ, यू कैन आस्क एप्ट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसके बेसिस पे ना आगे कुछ प्रॉब्लम्स भी दी हुई हैं. जो आपको डाटा, जैसे हमने प्रोटॉन डाटा दे रहे थे कि प्रोटॉन का 2 प्रोटॉन का सिंगलेट आ रहा है, 3 प्रोटॉन का डबलेट आ रहा है, या 3 प्रोटॉन का क्वाड्रेट आ रहा है. ठीक है, तो उसी तरह से आपको कुछ डेप्थ एक्सपेरिमेंट्स की डेप्थ का कुछ डाटा दिया आपका कि डीपीटी डाटा है, तो उसके बेसिस पे आपने प्रेडिक्ट करना है इसकी जो स्ट्रक्चर होगी कंपाउंड की, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल इट हैव. ठीक है, सो इफ इट इज क्लियर टू यू ऑल देन वी कैन गो. Okay, actually it's not a negative, well I will not call it negative, but we'll call it जैसे तो मैंने दिखाया नीचे अपोजिट, ये अपोजिट फेजेस में आएगा. ये जरूरी नहीं है कि नीचे जाएगा, ये सेटिंग है हमारी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ सेटिंग है. तो as I told you, each carbon depending upon the number of hydrogen attached, each carbon is behaving differently. ठीक है, वो अलग तरह से, जैसे हम सीक्वेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट, जब हम ये कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उस केस में जो कार्बन है सो दे विल बिहेव डिफरेंटली, और उस बिहेवियर के बेसिस पे ठीक है जो पिक करेगा, ठीक है जो सीक्वेंस पिक करेगा कि वो अब्सॉर्ब नहीं करेगा. जो क्वाटरनरी कार्बन जब हम C45 एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो रेजोनेंस में नहीं आएगा. ठीक है, हम इस तरह से उसको सीक्वेंस दे रहे हैं तो वो मिसिंग होगा, वो क्वाटरनरी कार्बन चला गया 45 में. ठीक है, इसी तरह से जब हम 135 कर रहे हैं, 135 मींस वो अपोजिट फेज दिखाएंगे. इट इज अप टू यू. हम दूसरे में ऐसा भी कर सकते हैं कि हो सकता है CH2 ऊपर हो, CH2 ऊपर आएगा और दोनों CH और CH3 नीचे आएंगे. सो इट डजंट मींस कि वो नेगेटिव पीक है, बट इट मींस कि वो डिफरेंशिएट कर रहा है. वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो कि एक तरफ वो दिखा रहा है एक तरफ एक तरह के जो दो तरह के उसको सिग्नल मिल रहे हैं. ठीक है, दो तरह के अलग सिग्नल मिल रहे हैं, उन दो सिग्नल्स को वो अलग अलग डिफरेंशिएट कर रहा है. तो अगर आपने उसकी सेटिंग कर दी कि अच्छा ये वाला सिग्नल है, इसको आप ऊपर की तरफ दिखाओ, तो हो सकता है वो CH2 ऊपर की तरफ दिखाए और CH और CH3 नीचे, तो ये पॉसिबल है.
ठीक है। तो लेकिन जनरली सेटिंग जो होती है वो मैक्सिमम इसमें तो वो सिर्फ ऐसे दिखाते हैं, CH और CH3 ऊपर की तरफ दिखाते हैं जो हमारे पास स्पेक्ट्रा आता है, और CH2 नीचे आता है, ठीक है। सो इट्स जस्ट ए सिंपल सेपरेशन ऑफ द पीक्स, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो किसी का? सर इसमें सील्डिंग एंड डिसील्डिंग का कैसे मतलब देखा जाएगा? जैसे कि डेप्थ 45 में क्वार्टिनरी वाला ज्यादा डिसील्डेड हुआ, वैसे ही 90 और 135 में कैसे देखा जाएगा? ये फिर से बोलो। सर डिसील्डिंग एंड सील्डिंग वाला में डेप्थ 90 एंड 135 में कैसे दिखा जाएगा? डी, हाँ, जो डिशील्डिंग बोल रहे हो आप? यस सर। शील्डिंग डिशील्ड, ओके। जो डेल्टा वैल्यू है, ठीक है, उसको जो केमिकल शिफ्ट है वो केमिकल शिफ्ट नहीं चेंज हो रही है, माइंड इट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वैल्यू एग्जैक्टली सेम रहेगी, ठीक है, जो यहाँ से चला ना ये सारे एग्जैक्टली सेम आएगी। दिस वैल्यू विल नॉट चेंज, तभी तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे ना इसको। ये देखिए, डेल्टा वैल्यू विल ऑलवेज रिमेन सेम, ये हमेशा सेम रहेगा। ये जैसे 170 पे है, ये अराउंड मे बी CH3 क्वार्टरली, लेट अस सपोज ये 15 पे आ रहा है, और ये वाला, और CH2 ये है, लेट अस सपोज ये 825 पे आ रहा है, और उसके साथ CL लगा हुआ है, लेट अस सपोज ये 60 पे आ रहा है, ठीक है। तो जो डेल्टा वैल्यूज है, डेल्टा वैल्यूज विल ऑलवेज रिमेन सेम, तभी तो आइडेंटिफाई करोगे। अच्छा 170 गायब हो गया, तो 170 गायब हो गया, कौन से वाला था ये, यहाँ पे 170, तो ये 15 पे आ रहा है, तीनों जगह 15 पे आएगा ये। उसकी हाँ, उसकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी वैसे। और कोई क्वेश्चन? हाँ, या TMS हमेशा रहेगा, क्योंकि हम जो आगे जो डेल्टा वैल्यू इज ऑलवेज रिलेटिव, वो रिलेटिव है, ppm में ले रहे हैं हम लोग, तो जो रेफरेंस रहेगा दैट विल ऑलवेज बी विद रिस्पेक्ट टू TMS। वो मैंने पहले भी बताया था आपको कि वो जो जीरो वाली आएगी वो जीरो हमेशा TMS की रहेगी, ठीक है। इसमें और जो स्केल आती है, स्केल साइज मैंने बताया था आपको, सो इट गोज फ्रॉम 0 to 200 इन जनरल, ठीक है। अब प्रोटॉन, क्योंकि जब आपने प्रोटॉन लेना है तो उसमें C13 नहीं लोगे आप, ठीक है। तो वो जो डेल्टा, जैसे इस केस में जो प्रोटॉन में डेल्टा वैल्यू वेरीज फ्रॉम 0 to 14, जनरली जो डेल्टा है वो 0 to 14 आता है, तो इन दोनों का ऐसा कोई डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। ये 0 to 14 जाता है, इनकी स्केल अलग है, क्योंकि ये रिलेटिव है, ये आपने दिया है कि इसके विद रिस्पेक्ट कितने दूर है दूसरे से, ठीक है, ये जो स्केल दे रहे हो आप, ठीक है। और इस केस में जो C13 है, C13 के केस में जो रेंज है डेल्टा वैल्यूज की, इट गोस फ्रॉम 0 to 200, और 200 से ज्यादा भी हो सकता है। जनरली जो कार्बोनाइल आपका एल्डिहाइड या कार्बोनाइल कीटोन है, तो ये 205 और 206 207, तो ये काफी ऊपर तक आता है, ठीक है। तो ये स्केल आपका ऑलमोस्ट 200 तक जा रहा है, सो देयर इज नो डायरेक्ट कंपैरिजन, बट देन वी विल गो टू द 2D एक्सपेरिमेंट्स। जब 2D एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो एक तरफ हम प्रोटॉन प्लॉट करते हैं और दूसरी तरफ C13 प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो उस केस में उनके डेल्टा वैल्यूज भी कंपैरिजन, वहां से पता चलता है कि अच्छा ये वाला यहाँ पे मैच कर रहा है, सो वी विल डू दैट इन डिटेल, उसको भी करेंगे हम लोग डिस्कस। लेकिन इस केस में अभी इनका ऐसा कोई डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है। हाँ, TMS वहीं पे एब्जॉर्ब करेगा, उसकी जो डेफिनेटली TMS की जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो तो सेम रहेगी, ठीक है, दैट विल नॉट चेंज। वो तो उस केस में भी कार्बन के केस में भी सेम रहेगी, ठीक है, सो दैट विल बी सेम, ठीक है। So this is for different types of carbon, कि how the carbon is different. Now the next is, तो जब हम इसको स्टडी करना है C13 स्पेक्ट्रा को, ठीक है, ये कर लिया हमने। सो जैसे हम लोगों ने प्रोटॉन के केस में किया था, सो वी आर हैविंग अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज, ठीक है, जो डेल्टा वैल्यूज है, ठीक है। आपके पास जो डेल्टा वैल्यूज आई थी कि so this scale it goes from starting from 0 to
अराउंड 200, ठीक है, मे बी मोर देन 200। तो ये स्केल यहाँ से यहाँ तक जाएगी, ठीक है। सो लेट अस सपोज, सो दिस इज मे बी 10 10 या 25 से करते हैं, फिर ज्यादा हो जाएगा। तो 25 50 100 125 150 175 and 200, ठीक है। So these are the delta values जो स्केल आ रही है आपकी। Now the concept of shielding and de-shielding that will remain same, ठीक है। तो जैसे जो हाईली शील्डेड कार्बन है, ठीक है, so that will be upfield, वो upfield पे आएगा। So this is upfield region and this is downfield region, और डेल्टा वैल्यूज बाहर आ रही है, ठीक है, तो वो उस तरफ आएगा। सो फॉर एग्जांपल अगेन अभी नो कि शील्डिंग और डीशील्डिंग कब होगी, व्हेन द कार्बन विल बी क्लोज टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के आसपास साथ है उसका, तो तब डीशील्डिंग होगी। तो इस केस में सो वी आर हैविंग, सो यहां से लेके यहां तक का वी आर हैविंग मोस्ट शील्डेड कार्बन, मोस्ट शील्डेड कार्बन, ठीक है। तो ये कौन से आएंगे, जिनके साथ, ठीक है, जो अल्काइल चेन्स है, सिंपल अल्काइल चेन्स है, ठीक है, जिनके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच नहीं है। सो वेरी वेरी सिंपल अल्काइल चेन्स, ठीक है। सो वी आर हैविंग दोस, तो ये आ जाएगा इस रेंज में। सो इट विल बी फ्रॉम ऑलमोस्ट 0 to 25 और 30, यहां तक रेंज आएगी, 25 तक रेंज आएगी, ठीक है। दूसरा जो CH2 ग्रुप है, जो आगे दूसरे कार्बन के साथ या फार अवे, अगर 2 या 2 या 3 बॉन्ड अवे कार्बन कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उनके साथ अटैच है, ठीक है। सो इट दीस विल बी फ्रॉम मे बी फ्रॉम 25 to 50, ठीक है। सो CH2 C and X electronegative atom is attached to, so this carbon will appear in this range, ठीक है। और जो आगे वाली रेंज आएगी, ठीक है, फ्रॉम ऑलमोस्ट 40 to 60 और 40 to 80, ठीक है। सो ये वाली रेंज, so 40 to 80, okay. So in this case the carbon is directly attached to a electronegative atom. So electronegative atom, it may be halogens, it may be nitrogen or it may be oxygen या फ्लोरीन, ठीक है। तो halogens में से जिसके साथ भी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा, तो जब डायरेक्टली अटैच्ड है, तो डायरेक्टली अटैच्ड के केस में so this carbon will depending on other environment, ठीक है। so this is huge range, so 40 से लेके 80 तक। जैसे कार्बन के साथ अगर क्लोरीन है या ब्रोमीन है, तो में भी 40 या 42 के आसपास आएगा। अगर नाइट्रोजन है कार्बन के साथ, ठीक है, तो 48 50 के आसपास आएगा। अब अगर कार्बन के साथ सीधा ऑक्सीजन अटैच है, ठीक है, डायरेक्टली अटैच है कार्बन के साथ, तो वो 60 की रेंज में आएगा, वो 60 की रेंज में। और अगर उसी तरह से अगर बढ़ जाता है, 2 कार्बन अटैच है या 2 ऑक्सीजन अटैच है, ठीक है, तो वो रेंज और बढ़ जाएगी, ठीक है। सो वो या अल्कोहल अटैच है कार्बन के साथ, CH अल्कोहल चेन में अल्कोहल है, ठीक है, तो उस केस में वो 80 तक जा सकता है, ठीक है। और COH, तो अगर ये COH है तो ये 70 और 80 के बीच में आता है ये वाला कार्बन। सो ये आ गया, ठीक है। इसके बाद फिर आगे जो 80 से 100 वाली रेंज है, यहां से फ्रॉम 80 to 100, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये भी इसी रेंज में आता है। 100 ज्यादा हो गया, 90 तक, 80 और 90 के बीच में आता है ये, ठीक है। सो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, सो बिटवीन 80 to 90, ठीक है। और उसके बाद जो 100 से ऊपर जाएगी रेंज, ठीक है, ये 100 से ऊपर जो कार्बन आएंगे,
So these carbon will be highly, जो anisotropy आती है, ठीक है, so highly de-shielded. So anisotropic effect शुरू हो जाता है, जैसे हमारे हाइड्रोजन थे and those hydrogen they were lying in the de-shielded regions, ठीक है, वो पैरामैग्नेटिक रीजन में लाइक कर रहे हैं, ठीक है. So उसी तरह से ये वाले कार्बन, these carbon they will be lying in the पैरामैग्नेटिक. एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से, और दूसरा पैरामैग्नेटिक करेक्टर की वजह से जब वो लाई कर रहे हैं, so they are lying in that range. So in that case, so this range it varies from almost 100 to 150, ठीक है. तो जब डबल बॉन्ड आएगा इसका तो 100 to 150 तक, ठीक है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जा रहा है, ठीक है. और इसके आगे ऊपर जो आएगा आपका, ठीक है, सो 160 ऑनवर्ड्स, ठीक है. तो 160 ऑनवर्ड्स के आसपास या तो आपका एरोमेटिक रिंग में, जैसे ये वाला कार्बन अटैच्ड है, ये जो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, एक तो एरोमेटिक रिंग में है और साथ में ये कार्बन जैसे ये वाला कार्बन, और साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है फिनोल्स OH, ठीक है. सो इट विल कम इन द रेंज ऑफ अराउंड 160 ppm, 160 ppm के आसपास आएगा, ठीक है. और दूसरी तरह के कार्बन्स, ठीक है, सो 150 टू अराउंड 170, और आई विल कॉल इट 160 टू 170 और 175, ठीक है. इस रेंज में अगर दो से ज्यादा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये अराउंड 170 के रेंज में आता है. उसी तरह से अगर आपके पास एस्टर ग्रुप है, वो इथाइल, और एनहाइड्राइड है, ये कार्बन COO, दो ऑक्सीजन अटैच्ड है, तो जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा अटैच्ड है तो वो 160 प्लस आएंगे, 160, 165, 170 उस रेंज में आएंगे ये, ठीक है. और अगेन ड्यू टू एनाइसोट्रॉपी 200 से जो मोर देन 200, 192 और 210, ये रेंज है बेसिकली कार्बोनाइल की. जो कार्बोनाइल ग्रुप अटैच्ड है आइदर कीटोन और एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड आएगा आपका 190 के आसपास, 195 के आसपास, और जो कीटोनिक ग्रुप है सो दैट विल अगेन गो टू 204, 205. तो अगर 204 और 190 से ऊपर अगर कुछ आ रहा है, so that is very much clear indication of presence of carbonyl or carbonyl group, CO double bond. 170 के आसपास it may be ester, it may be carboxylic acid, it may be anhydride, ठीक है, और अमाइड भी हो सकता है. अमाइड भी 170 के रेंज में आता है, ठीक है, जो अमाइड वाला कार्बन होगा. so that is again lying in this range. लेकिन जो उसके ऊपर आएगा, ठीक है, so that will be most probably it will be carbonyl, तो उस रेंज में कार्बोनाइल आएगा, ठीक है. आपकी बुक में दिया हुआ ये सारा. so you must know, जैसे प्रोटॉन की तरह कि प्रोटॉन में आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यूज पता है कि अच्छा कौन सा ग्रुप जो मिथॉक्सी ग्रुप है या NCHC ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे आएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है. तो जो सीजो ट्रांस प्रोटॉन है वो कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है. so similarly you must know where these carbon, कि अगर आपके पास 170 पे पीक आ रही है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकती है, ठीक है. तो आपके पास अपेंडिक्स ये दिया हुआ है, वैल्यूज दी हुई है इनके पीछे आपकी बुक में. सो गो थ्रू दिस, ठीक है. और इस पे भी अगर है आपको तो एक ठीक है एक असाइनमेंट्स बना लीजिए, तो आपके असाइनमेंट्स भी हो जाएंगे साथ में. एक आपने बना लिया कोई बात नहीं, एक और असाइनमेंट तैयार करिए. सो द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, ये जो C13 वैल्यूज है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स की, फंक्शनैलिटीज की, अल्काइल चेन की कहां पे आएगी, ठीक है. और जब कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है, बॉन्ड बॉन्ड अवे या 2 बॉन्ड अवे 3 बॉन्ड अवे, तो उस केस में कहां पे आएगी वैल्यूज, ठीक है. तो वो और बाकी जो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है, ठीक है, या एनहाइड्राइड है, ठीक है, कार्बोनाइल है, तो उस केस में वेयर द कार्बन वैल्यूज विल लाइज, ठीक है. तो ये सारा डिटेल में बना लीजिए, चार्ट बना लीजिए एंड सबमिट इट, ठीक है, ताकि आपका होमवर्क हो जाएगा और you will have a little bit idea about these things. Okay. Any question on this?
So these are the approximate values for C13 and rest the equivalent equivalent protons जो था हमारे पास की जो chemical equivalent protons है, so same thing lies with the equivalent carbon atoms. Okay, so for example if you are having a okay, so how many different type of carbon C13 signal you are expecting? ठीक है, ये आपके पास कंपाउंड है, इस कंपाउंड में से ईथर, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल C13 सिग्नल कितने आएंगे आपको इस कंपाउंड में? Two. ठीक है, सो अगेन सो सिमिलरली जैसे प्रोटॉन है तो प्रोटॉन भी दो आएंगे, इसमें दो तरह के प्रोटॉन है, तो कार्बन भी दो तरह के हैं इसमें, ठीक है, सो वी आर हैविंग two different types of signal, so these two will be signal. Another important information is so CH, CH2, CH3 and C. Okay, actually I told you that the C13 spectra is not a quantitative one. Okay, तो ये quantitative नहीं, आपको ये नहीं पता चलता है कि कितने कार्बन आ रहे हैं। अब इस केस में देखिए आपके पास टोटली इस कंपाउंड में इन टोटल तो 6 कार्बन एटम है, ठीक है, 6 कार्बन एटम है, बट यू आर गेटिंग 2 पीक्स ओनली, 2 पीक्स आएंगी और 2 पीक्स भी वो, ठीक है, वो दोनों एक जैसी पीक आएंगी, आपके पास ऐसा नहीं होगा कि एक बड़ी पीक आ गई और एक छोटी पीक आ गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये 2 कार्बन है, CH3 2 ग्रुप है और CH सिर्फ एक ही है, तो ऐसा नहीं कि CH वाली छोटी पीक आएगी और CH3 वाली बड़ी पीक आएगी, ठीक है, ऑलमोस्ट इनकी जो इंटेंसिटी होगी ऑलमोस्ट बराबर होगी इन दोनों पीक्स की, ऑलमोस्ट एक जैसी आएगी दोनों पीक्स की, ठीक है, तो इस केस में, ठीक है, सो दिस इज नॉट ए क्वालिटेटिव बट, ठीक है, अब वी कैन हैव वेरी स्मॉल इंफॉर्मेशन अबाउट द टर्शियरी कार्बन, जो क्वार्टरनरी कार्बन है जिसके साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, ठीक है, जनरली इस कार्बन के जो सिग्नल आते हैं वो स्मॉल आता है, स्मॉल सिग्नल एज कंपेयर टू जो CH, CH2 और CH3 है, so CH, CH2 और CH3 की बड़ी पीक्स आती हैं, लार्ज पीक्स आती हैं, लेकिन जो क्वार्टरनरी कार्बन है उसकी पीक हमेशा थोड़ी छोटी होती है, स्मॉल होती है उसकी पीक, ठीक है, एंड द रीजन फॉर दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ए NMR एक्टिव न्यूक्लियस क्लोज टू द कार्बन एटम, ठीक है, so whenever there is a proton attached to the carbon, so this nuclei it help in the spin relaxation processes, ठीक है, बेशक अलग-अलग तरह का न्यूक्लियस है ये, लेकिन जो ये न्यूक्लियस है इसकी एक्साइटेशन और डीएक्साइटेशन में जो रिलैक्सेशन प्रोसेसेस है उस केस में अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है वो कार्बन दैट हैज बेटर रिलैक्सेशन, वो जल्दी से रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, और यू नो द इंपोर्टेंस ऑफ रिलैक्सेशन प्रोसेसेस, ठीक है, क्या है कि जब आपने पल्स दिया, पल्स के बाद जब एक्साइटेड स्टेट में चला गया न्यूक्लियस, ठीक है, और फिर वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो ठीक है, जब हम सेकंड पल्स देंगे जो रिलैक्सेशन टाइम दे रहे हैं बीच में, वो इसलिए दे रहे हैं ताकि जो न्यूक्लियर हायर एनर्जी स्टेट्स में वो सारे के सारे मैक्सिमम ग्राउंड स्टेट में आ जाए, सो दैट वी हैव मैक्सिमम पॉपुलेशन इन द ग्राउंड स्टेट for the and the sample need to be ready for the next pulse, जो next pulse देंगे हम, उसमें जितना population difference होगा, ठीक है, उतने न्यूक्लियस के ऊपर जाएंगे, फिर हमें वो एनर्जी डिफरेंस उतना ज्यादा मिलेगा और उतना स्ट्रॉन्ग पीक आएगी हमारे पास, ठीक है, विल गेट, तो इस केस में क्या हो रहा है कि जब कार्बन, जिन कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, सो दे आर हैविंग बेटर रिलैक्सेशन, तो उस केस में तो मैक्सिमम डीएक्साइटेशन हो जा रही है इक्विलिब्रियम के बाद, ठीक है, तो फिर सो दिस कार्बन न्यूक्लियस दे आर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट सीक्वेंस, तो उसमें ज्यादा पॉपुलेशन डिफरेंस है वो, तो जितना ज्यादा पॉपुलेशन डिफरेंस आएगा उसकी इंटेंसिटी सिग्नल्स उतना स्ट्रांग आएगा, लेकिन क्वार्टरनरी कार्बन के केस में
ठीक है, ये ठीक तरह से इसकी रिलैक्सेशन नहीं हो पाती है। अगर रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगी, पॉपुलेशन डिफरेंस विल बी लेस, तो इसकी इंटेंसिटी हमेशा कम रहती है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस एंड दैट्स व्हाई, ठीक है, एटलीस्ट फ्रॉम द एनएमआर स्पेक्ट्रा, सो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई जो भी आपके पास क्वार्टरनरी कार्बन रहेगा, तो आप क्वार्टरनरी कार्बन को जनरली इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, तो कितना क्लियर दिख रहा है आपको, और अगर आप यहाँ देख रहे हो तो ये जो कार्बोनाइल है, ठीक है, इस केस में ये वाला, तो ये पीक्स आपको जो क्वार्टरनरी पीक मिलेगी ये हमेशा छोटी मिलेगी, छोटी सी पीक आ रही है ये वाली एज कम्पेयर टू अदर। तो ये वाला कार्बन है, फिर उसके साथ आपके पास हाँ, एक कार्बन नंबर 1 है, तो कार्बन नंबर 1 भी ये जो बेंजीन रिंग में, अगर आप यहां से देखोगे ये कार्बन नंबर 1 है, तो बेंजीन रिंग में जो क्वार्टरनरी कार्बन है ये 1 है, उसको दिया है, तो अगर इसकी पीक भी देखोगे आप, ये भी छोटी आएगी आपको, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर पीक्स, जो OCH3 है, ये है वो, तो बाकी पीक सारी बड़ी है, ये थोड़ी कम आएगी पीक, ठीक है, ये वाला और ये, ठीक है, तो इससे थोड़ा सा हमें ये आइडिया लग जाता है कि बीच ऑफ द कार्बन माइट बी ए क्वार्टरनरी कार्बन, तो ये जो क्वार्टरनरी पीक आती है, ठीक है, तो ये इसको हम थोड़ा इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, so this is about these peaks. Then next is this is paranisol. So how many different types of peaks you are expecting? C13 में कितने peaks आएंगे इसके? So there is difference between 3 and 4. ठीक, चार वाले कौन कौन है? चार कैसे आएंगी? Any of you can unmute yourself. चार peaks कैसे आएंगी? आप में से किसी ने बोला चार भी आएंगी। चार peaks कौन कौन सी आएंगी? ठीक है, so you have to see, you have to find out the equivalent carbons. Okay. So this carbon OCH3 is one type of carbon. Okay. Then you are having this quaternary carbon. So this CH3, so this is a second type of carbon. Okay. And the third is this one. But these are all same. Okay, so these are third type of carbon. इनका जो chemical environment है वो सेम आ रहा है तीनों का। ठीक है, so you are having only 3 types of peaks, इसमें 4 नहीं होंगे। ठीक है, so 1, 2 and 3, ये दोनों कार्बन का सेम एनवायरनमेंट है, ये वाला कार्बन का और ये वाले कार्बन का। ठीक है, इट विल बी सेम। इसमें आपकी बुक में और डिटेल में दे रखा है, बट आई डोंट थिंक इट इज वर्थ टू फाइंड आउट। आपको अगर प्रेडिक्ट करना है, ठीक है, मान लो सब्स्टिट्यूएंट्स है, सब्स्टिट्यूएंट्स की डेल्टा वैल्यू और उसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल दिस इज बेंजीन, इसमें कितने तरह के कार्बन सिग्नल मिलेंगे भाई बेंजीन में? ठीक है, सो इन बेंजीन, so all the carbon and hydrogens, they are equivalent because we are having only one type of carbon here, so we are having only one signal. ठीक है, और यहाँ पे एक सिग्नल मिल रहा है और वो सिग्नल मिलता है अराउंड 128.5 ppm। Okay, so this is the basic value of this carbon। Okay, and depending upon the substituents, आपका जो substituents है वो यहाँ पे अटैच है,
ठीक है, तो उसके विद रिस्पेक्ट आप कार्बन की वैल्यू वेरी करेगी, ठीक है, 1 सो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे CH3, ठीक है, तो इस पोजीशन पे आपका CH3 पहले सारे के सारे कार्बन सेम थे, ठीक है, नाउ द स्टेरियो चेंजेस, नाउ इस केस में ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, कार्बन हर कोई कार्बन अलग अलग से बिहेव करेगा, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट्स, तो अलग अलग तरह से बिहेव करेंगे। सो जिस कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है डायरेक्टली, ठीक है, जैसे ये कार्बन है इसके साथ डायरेक्टली अटैच है, वी कॉल इट इप्सो पोजीशन, तो दिस इज इप्सो, IPSO, इप्सो पोजीशन, इसी कार्बन के साथ अटैच है सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। देन दूसरा आ जाएगा with respect to substituents, so this carbon is ortho, this carbon is meta, and this carbon is pair, ठीक है, and this substituents जो substituent as है doesn't matter what is it, so it produces different effects on the different, तो ये वाली पोजीशन पे ऑर्थो बनेगी, ये मेटा बनेगी और ये पैरा बनेगी, ठीक है, so depending upon these substituents, ठीक है, so different substituents they are having different effects, ठीक है, इसके विद रिस्पेक्ट टू कार्बन है ऑर्थो पोजीशन पे कार्बन है, इसकी बेसिक वैल्यू जो 128.5 है, ठीक है, लेकिन ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स का इफेक्ट होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, सो विद रिस्पेक्ट टू, तो वो आपके पास टेबल दिया हुआ है, ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो थ्रू इट और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि फिर ये वाला कार्बन कहां पे आएगा ऑर्थो वाला, फिर मेटा वाला कार्बन कहां पे आएगा और पैरा वाला कार्बन कहां पे आएगा, तो उसी तरह से अगर दो सब्स्टिट्यूएंट हो जाते हैं, ठीक है, सो दो सब्स्टिट्यूएंट एक इप्सो का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो इप्सो का कितना कंट्रीब्यूशन आता है, मेटा का कितना आता है, पैरा का कितना आता है, ठीक है, सो दैट यू कैन कैलकुलेट, ठीक है, बट इट्स ओनली थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस, इसके बजाय आप अगर ये टेबल में आपको ये मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं कि कौन तरह से कार्बन है वो कहां पे दिखेंगे आप, ठीक है, प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, टर्शियरी कार्बन है, ठीक है, डबल बॉन्ड है, वो किस रेंज में आएंगे, अप्रोक्सीमेटली उनकी वैल्यू कहां पे होगी, ठीक है, सो दैट इज मोर वर्थवाइल एज कंपेयर टू ये कुछ ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा आपको ये कैलकुलेट करना, ठीक है, सो दिस इज अबाउट C13, ठीक है, then the next is the solvents and peaks, solvent peaks, so हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि प्रोटॉन NMR में, ठीक है, when we discussed proton NMR, so in that case, so why do we need deuterated solvent, हमें ड्यूटरेटेड सॉल्वेंट की ही जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, why not CaCl3, but in place of CaCl3 we are using CdCl3 in place of methanol, okay, so we are using CdOD, and in place of DMSO CH3Cu we are using CD3SOCD3, or in place of acetone, again we are using deuterated acetone, okay, so why do we need to use the deuterated solvents, वो क्यों दिखाते हैं, क्यों लेते हैं हम लोग deuterated solvents, कोई भी Sir, deuterium is inactive, sir. NMR inactive. deuterium is NMR inactive, No, sir. Sorry. वो active है क्योंकि वो odd even का combination है. NMR इसकी deuterium की क्या होती है, 2H न्यूक्लियर स्पिन, 2H नहीं सर वो active है क्योंकि वो odd even का combination है. I is equal to 1, हाँ तो वो तो एक्टिव है, NMR एक्टिव तो है। ड्यूटेरियम का डिफरेंट होगा ना रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो वो हाइड्रोजन के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा सर। इससे वही क्वेश्चन आ गया जिस दिन हम डिस्कस कर रहे थे, तो क्या अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जैसे हम कार्बन और हाइड्रोजन का कर रहे थे, तो
कार्बन की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो अलग है, ठीक है, हम बोल रहे थे 1/4 है। अगर हम 400 मेगाहर्ट्ज ये इंस्ट्रूमेंट तो 400 मेगाहर्ट्ज पे हाइड्रोजन करेगा, रेजोनेंस में आएगा, और जो कार्बन है वो 100 मेगाहर्ट्ज पे आएगा, लेकिन हमें फिर भी डीकपल करना पड़ रहा है वो। तो क्या जो कपलिंग होगी या स्पिन स्पिन इंटरेक्शंस होगी वो निकलेगी, ठीक है। तो इज इट नेसेसरी कि वो तभी होगी जब वो रेजोनेंस में आएंगे, ये बिना रेजोनेंस की नहीं हो सकती है क्या कपलिंग? वो तो हम क्लियर कर चुके थे, वो दिन हमने डिस्कस किया था। हेलो सर, ड्यूटेरियम का तो एबंडेंस बहुत ही कम है सर, नेचुरल एबंडेंस। कम है, लेकिन इसमें आप क्या कर रहे हो कि आप एनरिचमेंट कर रहे हो उसकी। जब CdCl3 बना दिया आपने तो उसमें आपने एबंडेंस वाला वो खत्म कर दिया कॉन्सेप्ट ही। जैसे आप आइसोटोपिक एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसके इसमें आप क्या करते हो कि C12 को C13 से एक्सचेंज कर देते हो सारे के सारे, जो आपके पास C12 पड़े हो उसको C13, तो पूरा 100% C13 बना देते हो आप, उस केस में अलग हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे आप, यू डूइंग एनरिचमेंट, यू आर कन्वर्टिंग CHCl3 इनटू CdCl3, तो इस केस में आपके पास है 100% CdCl3, तो देयर इज नो इशू, तो वो रहेगा ही, वो एज ए सॉल्वेंट सॉल्व होने में तो ड्यूटेरियम रहेगा ही। फिर वो आपने हाइड्रोजन सारा एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, तो now because this chloroform is containing proton, अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन you can have again nuclear overosmolarity enhancements और इफेक्ट। तो जब प्रोटॉन स्पेस में, जब सॉल्वेंट के अराउंड, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल उसको घेरा हुआ उसने, तो जब उसके तो जब पास रहेगा वो, तो वो दैट विल इंटरफेयर, वो इंटरफेयर करेगा आपके स्पेक्ट्रा के साथ। तो हर एक डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने उसके प्रोटॉन है उनको डिपेंडिंग ऑन दैट, सो दैट विल that will split the nuclei, उनको स्प्लिट करेगा प्रोटॉन्स को, सभी प्रोटॉन्स को, ठीक है। सो दैट इज व्हाई we convert it into a deuterium CdCl3. Now the second question is deuterium. So whether deuterium is interfering, क्या इंटरफेयर कर सकता है क्या प्रोटॉन के साथ? What do you say? Is deuterium is NMR active? NMR active है क्या? अब तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए, तो हम NMR ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं। ड्यूटेरियम NMR एक्टिव है कि नहीं? Yes sir, active. Basic question. So yeah, it is NMR active. So can it interfere with the proton? कर सकता है, फिर प्रोटॉन के साथ इंटरफेयर कर सकता है? सर होना तो चाहिए, मैंने काटा। नेग्लिजिबल सर, नेग्लिजिबल। प्रोटॉन एनएमआर में तो नहीं आएगा ना इसका पीक, मतलब इट विल बिहेव साइलेंट। दैट इज व्हाई CHCl3 की जगह हम CdCl3 यूज कर रहे हैं, ताकि वो प्रोटॉन एनएमआर से वो ना करे, इंटरैक्ट ना करे। नहीं, उसमें जो हाइड्रोजन है वो अटैच्ड नहीं है, वो जो कार्बन का केस था उसके साथ तो हाइड्रोजन थी कि डायरेक्ट बॉन्ड बना हुआ था, इसीलिए स्प्लिटिंग कर रही थी हाइड्रोजन कार्बन 13 में भी। लेकिन यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक तो है कि क्या हमें ड्यूटेरियम की पीक मिलेगी कि नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम में क्या ड्यूटेरियम की पीक आएगी कि नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, आएगी पीक कि नहीं आएगी? आएगी सर, बट ब्रॉड पीक आएगी। क्यों? बिकॉज ये फिर से मतलब उसके अंदर ही इंटरेक्शन करता है, मतलब स्प्लिटिंग जैसे होता है वैसे ही करता है, तो आई थिंक क्या ठीक है, तो मैं फिर से पूछता हूँ क्वेश्चन, तो क्या प्रोटॉन और ड्यूटेरियम की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम होती है क्या? नो सर, डिफरेंस होती है। पीक नहीं आएगी सर, अलग नहीं होती आनी है चाहिए। फ्रीक्वेंसीज। ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बुक को पढ़ो, ठीक है, साथ में सिर्फ जो मैंने लेक्चर किया उस पे कंसंट्रेट करो। हमारे पास इतना टाइम नहीं और ना ही हम इतना डिस्कस कर पाएंगे हम लोग इन सब चीजों को, तो साथ में पढ़ो, दिस कांसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। तो पीक कब आएगी? पीक तब आएगी जब वो रेजोनेंस में आएगा, न्यूक्लियर रेजोनेंस में आएगा। जब आप प्रोटॉन स्पेक्ट्रा ले रहे हैं तो प्रोटॉन स्पेक्ट्रा में आपने
limited frequency, the limited set of frequency, in those frequencies only the proton nuclei can come into resonance. The resonating frequency of proton is different from deuterium, deuterium की deuterium से different है और उसकी फिर कार्बन से different है. हमें because C13 है, C13 रहता है वहाँ पे, वो उसकी पीक क्यों नहीं आ रही है हमें? या जब हम C13 स्पेक्ट्रा ले रहे हैं, वो भी हमने डिस्कस किया था, C13 स्पेक्ट्रा ले रहे हैं तो प्रोटॉन है वहां पे, why we are not getting peak for proton? तो प्रोटॉन की पीक क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि जो प्रोटॉन की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, हम C13 को रेडिएट कर रहे हैं 100, अगर 400 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है, हम 100 मेगाहर्ट्ज पे कर रहे हैं, तो 100 मेगाहर्ट्ज पे प्रोटॉन विल कम इनटू रेजोनेंस एट 400 मेगाहर्ट्ज, तो हम वो फ्रीक्वेंसी सप्लाई नहीं कर रहे हैं उसको, सो दैट विल नॉट कम इनटू रेजोनेंस. दिस इज फर्स्ट. ठीक है, ये क्लियर कर लो. तो वो रेजोनेंस में नहीं आएगा. अगर रेजोनेंस में नहीं आएगा, we will not get a peak. The second question is whether proton can split C13 जो उसका न्यूक्लियर आ रहा है. Yes. So वो उसको स्प्लिट कर पाएगा, क्योंकि स्प्लिटिंग के लिए the proton need not to be come into resonance. उसको रेजोनेंस में आने की जरूरत नहीं है. वो NMR active है. NMR active is having a nuclear spin plus half and minus half. So those nuclear spins they will always interfere. उसका जो नेबरिंग है, उसकी जो पीक आ रही है, उस पीक पैटर्न में वो हमेशा इंटरफेयर करेंगे. That's why we are having proton decoupled spectra. तो क्योंकि वो प्रोटॉन अगर उसके न्यूक्लियस में रहेगा, उसके पास रहेगा, तो वो हमेशा ही वो पीक देगा. हम क्या कर रहे हैं कि उस प्रोटॉन को डीकपल कर रहे हैं, उसको सैचुरेट कर दे रहे हैं, ताकि उसकी जो स्पिन्स है, दो स्पिन्स है प्लस हाफ और माइनस हाफ, वो उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाए. ठीक है, तो वो करेगा, वो वहां पे आएगा. इसी तरह से अब CdCl3 है. CdCl3 में CHCl3 इसलिए क्योंकि प्रोटॉन एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी पे वो रेजोनेंस में आते हैं, तो हमें ये इतनी बड़ी पीक दिखेगी, क्योंकि सॉल्वेंट तो बहुत ज्यादा लेते हैं हम लोग. सैंपल तो हम सिर्फ 5 mg ले रहे हैं या 10 mg ले रहे हैं, तो इधर तो क्लोरोफॉर्म की पीक इतनी बड़ी आ जाएगी कि वो बाकी स्पेक्ट्रा में दिखेगा ही नहीं, जो प्रोटॉन स्पेक्ट्रा आ रहा है. क्या हम CCl4 में स्पेक्ट्रा ले सकते हैं क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड में? सॉरी, CCl4 ले सकते हैं इसमें? क्योंकि हम जनरली बात कर रहे हैं कि वी जनरली टेक द NMR स्पेक्ट्रा इन ड्यूटेरेटेड सॉल्वेंट्स. हम सिर्फ ड्यूटेरेटेड सॉल्वेंट्स में लेते हैं, तो इसमें तो ड्यूटेरियम नहीं है. क्या इसमें हम स्पेक्ट्रा ले सकते हैं? प्रोटॉन NMR और C13 NMR क्या ले सकते हैं इसमें? Yes, we can. सर जो सॉल्वेंट होता है वो प्रोटॉन फ्री होना चाहिए, नहीं तो वो एब्जॉर्ब करेगा बहुत ज्यादा. क्या होना चाहिए? जो सॉल्वेंट है वो प्रोटॉन फ्री होना चाहिए, नहीं तो वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो पिक नहीं देगा अच्छे से. हाँ, वो ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ हमारे पास CCl4, उसमें तो प्रोटॉन है नहीं, तो क्या इसमें हम NMR ले सकते हैं क्या? Yes, sir. यस सर. Yes, हम CCl4 में, क्योंकि जो although chlorine is NMR active, ठीक है, ब्रोमीन, क्लोरीन, बट अंडर नॉर्मल कंडीशन दे डोंट एब्जॉर्ब. ठीक है, उनकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है और वो है, सो वो इंटरफेयर नहीं करते हैं दूसरे स्पेक्ट्रा के साथ. ठीक है, तो ये वी कैन टेक, हम CCl4 में NMR ले सकते हैं. लेकिन क्यों नहीं लेते? बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट इट्स हाईली नॉन-पोलर, सो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स दे आर इनसॉल्युबल. जब इनसॉल्युबल होंगे कंपाउंड्स, डिसॉल्व नहीं होगा, तो आपका स्पेक्ट्रा कैसे आएगा? ठीक है, अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म में रह रहा है, ठीक है, तो वो सॉलिड स्टेट में रहेगा, तो वो इसलिए हम CCl4 में नहीं लेते हैं. वी कैन टेक नाउ CdCl3. तो CdCl3 में इसलिए रिप्लेस कर दिया हमने ड्यूटेरियम के साथ. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज वेदर ड्यूटेरियम कैन इंटरफेयर विद द प्रोटॉन. तो क्या ड्यूटेरियम प्रोटॉन के साथ, जो हमारे प्रोटॉन्स है, ये जो कंपाउंड लिए हमने, जो सैंपल है, क्या उसके साथ इंटरफेयर कर सकता है? नो. क्यों? सर एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में वो दोनों नहीं आएंगे. मैं फिर से मैं बार-बार बोल रहा हूं आप लोगों को, आप ना आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा डाउट रहता है, थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं रहती है, लेकिन
बिकॉज आई हैव जस्ट 2 or 3 टाइम्स अभी डिस्कस कर लिया और पहले भी डिस्कस किया था हमने कि दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो रेजोनेंस में आके पीक आना। आप लोग सभी लोग उस चीज को कंफ्यूज कर रहे हो आप कि CDCl3 रेजोनेंस में आएगा, रेजोनेंस में आके क्या करेगा, वो अपनी पीक देगा। वो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि प्रोटॉन और ड्यूटेरियम की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो जब हम प्रोटॉन को NMR स्पेक्ट्रा नोट कर रहे हैं तो उस फ्रीक्वेंसी पे ड्यूटेरियम रेजोनेंस में नहीं रहेगा, वो अब्सॉर्ब नहीं करेगा, हमें पीक नहीं मिलेगी ड्यूटेरियम की। दैट्स ओके, वो अंडरस्टैंड आ गया, ठीक है। माय सेकंड क्वेश्चन इज कि क्या ड्यूटेरियम इंटरफेयर करेगा प्रोटॉन के साथ उसके सिग्नल को, ठीक है। क्या हाइड्रोजन ड्यूटेरियम कपलिंग ये नेग्लिजिबल है? क्यों है नेग्लिजिबल कपलिंग हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम? कपलिंग के लिए बॉन्ड होना चाहिए ना, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का किसी ना किसी से, तो बॉन्ड तो नहीं है हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का। ये दो तरह से, मैंने आपको न्यूक्लियर ओवरहाउसर इफेक्ट जो बताया था आपको, जो आपकी स्प्लिटिंग स्पिन स्प्लिटिंग है, वो दो तरह से हो सकती है, ठीक है। आइदर इट कैन ट्रांसफर थ्रू स्पेस, क्योंकि ये है सारा कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स है उसका। तो अगर वो उस रेंज में है जहां पे वो आपस में एक दूसरे को मैग्नेटिक फील्ड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उस केस में उस दिन में हमने क्लास लिया पर उसमें हमने देखा था कि स्पेस में मे बी दे कैन ट्रांसफर देयर मैग्नेटाइजेशंस, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इट कैन हैपन, स्पेस में कम चांसेस है क्योंकि वो उस मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए उनके बीच में ताकि वो इन्फ्लुएंस कर पाए, तो वो तब होती है। सो न्यूक्लियर ओवरहाउसर इफेक्ट है, वो स्पेस में जा सकता है। अब इस केस में क्या हो रहा है कि व्हेन यू आर डिसॉल्विंग समथिंग इन ए सॉल्वेंट, ठीक है, एक आपका सॉल्यूट है दूसरा सॉल्वेंट है, तो जब वो डिसॉल्व हो जाता है तो क्या होता है, डिसॉल्व होके जो सॉल्यूट है, so the solute there is a different kind of interactions, maybe ionic interactions or maybe polar interaction or dipolar interactions or van der Waals interactions। तो उसमें जो solvent molecule है, each of the solvent molecule is each of the solute molecule is surrounded by the solvent molecule जो उसको solvate करता है, solubilizes करता है, ठीक है। और जब वो उसके साथ है then that is in close proximity, तो solvent molecule की close proximity में है, ठीक है। तो उस केस में जैसे NaCl है, तो NaCl के केस में यू आर हैविंग Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव है तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। सो यू आर हैविंग दिस, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ठीक है। सो ईच सोडियम विल बी सराउंडेड बाय, सो दीस आर द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो पानी में डिसॉल्व किया। क्लोराइड है, क्लोराइड के केस में क्लोराइड इज नेगेटिव, तो उस केस में क्या होगा फिर ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो इट विल बी सॉल्वलाइज्ड बाय, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ये, ठीक है। सो इट विल बी सॉल्वलाइज्ड बाय क्लोराइड आयंस, ठीक है। तो ये हर एक केस में हर वो काइंड ऑफ इंटरेक्शंस में भी डिफरेंट, ठीक है, डायपोलर van der Waals जो भी हो सकती है, लेकिन इस पे सॉल्वलाइज हो रहा है। सो इन दैट केस so there is a possibility, there is a probability of these CDCl3 molecule they are in proximity with the proton, जो आपके कंपाउंड अटैच्ड कंपाउंड है उसके प्रोटॉन की प्रॉक्सिमिटी में हो सकते हैं। सो दैट कैन इन्फ्लुएंस, तो क्योंकि CDCl3 जो ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम इज NMR एक्टिव, अगर NMR एक्टिव है सो दैट विल डेफिनेटली इन्फ्लुएंस जो नेबरिंग प्रोटॉन है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू लॉक, हम इसके जो ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम सिग्नल को लॉक करना पड़ता है, ठीक है। सो देयर इज अ लॉकिंग, सो इसको भी हमें डबल इरेडिएट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो ये ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम will not be able to interfere with the protons, ताकि वो प्रोटॉन के साथ इंटरफेयर ना कर पाए, ठीक है। तो उसकी लॉकिंग भी करनी पड़ती है, ठीक है। नाउ यू विल सी, ठीक है, जब आप C13 स्पेक्ट्रा देखते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज ए C13 स्पेक्ट्रा, ठीक है, और ये यहाँ पे देखो पीक्स में लिखा हुआ है कि दिस इज CDCl3 का आपको एक ये पीक मिल रही है,
यू आर गेटिंग 3 पीक्स। ये एक एग्जांपल आ गया। बाकी और भी आप जब C13 देखोगे, C13 स्पेक्ट्रा देखोगे बाकी, ठीक है, तो उस केस में many times you will see 3 peaks. You will always see 3 peaks for CDCl3. Okay, तो ये 3 peaks कौन सी हैं? भी आ गया और फॉर एग्जांपल ये आपके पास फिर से एक ये स्पेक्ट्रा C13 स्पेक्ट्रा है। सो C13 स्पेक्ट्रा में अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो दिस वन इज ए CDCl3 की, और ये 3 पीक्स दिख रही हैं, 3 पीक्स आ रही हैं आपको, बाकी सिंगलेट और 3 पीक्स आ रही है। तो ये क्यों आ रही है? CDCl3 व्हाई वी आर गेटिंग 3 पीक्स? ये C13 स्पेक्ट्रा है। So C13 spectrum में we are getting 3 peaks और वो लिखा हुआ है CDCl3. So what is the reason? कोई आप में से? So CDCl3 केस में again, so we are having a so we are having a deuterium. ठीक है, तो जब ये ड्यूटेरियम है, so this deuterium will interfere with the carbon. इस कार्बन के साथ इंटरफेयर करेगा ये कार्बन सिग्नल्स के साथ, कार्बन पीक्स के साथ इंटरफेयर करेगा। ठीक है, नाउ जो ड्यूटेरियम का जो स्पिन क्वांटम नंबर है, हाँ सर, इसकी 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, +1 0 -1, तो उसकी वजह से हो सकता है। तो जो ड्यूटेरियम का जो ड्यूटेरियम का जो क्वांटम स्पिन क्वांटम नंबर है, इट्स 1 I/1 पर ड्यूटेरियम। ठीक है, जैसे प्रोटॉन के लिए हाफ है 1/2, C13 के लिए उसकी स्पिन स्टेट हाफ है, इसी तरह से ड्यूटेरियम के लिए 1 है, हाफ है स्पिन, प्रोटॉन की स्पिन स्टेट्स हाफ है, सो इट कैन एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट स्टेट, प्लस हाफ और माइनस हाफ, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो उसी तरह से ड्यूटेरियम के लिए 1 है, तो ये जो स्प्लिटिंग पैटर्न देगा, ठीक है, सो इसका जो स्प्लिटिंग आएगा, इट विल बी इक्वल टू 2ni + 1, so 2i + 1, it will be 2i + 1, so 2i + 1, so 2 into 1 + 1 is equal to 3, so it has 3 states, ठीक है, so 3 spin states or 3 possibilities, so we call it +1, 0 and -1. So these are the 3 different states for the deuterium. Okay. Now this deuterium, okay, so now it can split. जैसे हम लोग करते थे कि जनरली we are having जो splitting pattern आ रहा है, so splitting pattern is n+1 कर रहे थे हम लोग। okay. तो n means number of nuclei, कितने न्यूक्लियाई हैं, और +1, अगर 3 प्रोटॉन है तो 3 प्रोटॉन को 3 + 1 4 मींस क्वार्टेट दे रहा था। 2 प्रोटॉन है तो ट्रिपलेट है, 1 प्रोटॉन है तो डबलेट आ रहा था, तो वो कर रहा था, इसमें स्प्लिटिंग कर रहा था। ठीक है, बट दिस वाज ओनली ट्रू फॉर this formula is true probably for proton, जहां पे spin 1/2 है। Okay, so if you have a different spin, then this formula fails. Okay, so the modified formula is it is a 2ni + 1. So this is 2ni + 1. तो इस केस में जो n is number of nuclei, कितने न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, and I is the spin states. So for example, अगर आपके पास 3 न्यूक्लियस, 3 हाइड्रोजन है, CH3 में 3 हाइड्रोजन है, so 2 into 3 into spin state है 1/2,
प्लस 1 आई प्रोटॉन के केस में I1 है, ठीक है, सॉरी I1/2 है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 3 है और 2 into 3, so 2 से 2 कैंसिल, so it will be 3 plus 1 is equal to 4 में आ गया क्वाड्रेंट, ठीक है। उसी तरह से अगर न्यूक्लियाई 2 है सिर्फ 2 into 2 into 1/2 plus 1, ठीक है। अगर CH2 ग्रुप है, दो न्यूक्लियाई है, so ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, so 2 plus 1 is equal to 3, so you are getting a triplet, ठीक है। तो प्रोटॉन के लिए ये एप्लीकेबल हो गया दिस फार्मूला 2Ni+1, ठीक है, कि मल्टीप्लिसिटी व्हाट विल बी द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सिग्नल, वहां से पता चलेगा कि डबलेट आएगा, ट्रिपलेट आएगा, क्वार्टेट आएगा, ठीक है। एंड देन नाउ इन केस ऑफ ड्यूटेरियम, अगर आपके पास ड्यूटेरियम है, फॉर एग्जांपल CdCl3, सो CdCl3 में जो पैटर्न आएगा, सो इट इज 2Ni+1, तो इस केस में the number of nuclei is D is equal to 1, so 2 into 1 into I, ठीक है, the spin quantum number I for deuterium is 1 है, so plus 1, 2 into 1 into 1 is 2 plus 1 is equal to 3, so there are, ठीक है, जो आपकी मल्टीप्लिसिटी आएगी it will be a triplet, ये 3 आएगी इसकी मल्टीप्लिसिटी triplet, okay. So for this deuterium it will split this carbon into a triplet, ये triplet में split करेगा इसको, so it will split it into a triplet, ठीक है, ये triplet में split कर दिया। उसी तरह से so we are having now, so ये जो triplet में कर रहे हैं तीन spin states में, these will correspond to so 1 0 and -1, ठीक है, and all these states, ठीक है, so these are the probability is always equal, ठीक है, so जो ड्यूटेरियम है वो तीनों स्टेट्स में with equal probability एग्जिस्ट करता है, so it is having +1, so around 33%, 33% and 33%, ठीक है, equal probability है तीनों स्टेट्स की, that's why these three peaks they are always equivalent, ठीक है, वो दोनों तीनों के तीनों peaks बराबर आ रही है इसमें, क्योंकि जनरली हमारे पास जो ट्रिपलेट आता है, जो ट्रिपलेट आता था वो 1:2:1 की पैटर्न में आता था, ठीक है, और क्यों आता था ये, क्योंकि जो न्यूक्लियाई है, दो न्यूक्लियाई है, they can have different spin state, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, दोनों के दोनों नेगेटिव है, एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, और पहली नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव, so based on this we used to have this pattern 1:2:1, but in this case, in case of deuterium, the three spin states +1 0 and -1, so all these three spin states they are their probabilities always same, हमेशा same probability है उनकी, तीनों spin states में रह सकते हैं बराबर, तो उस केस में that's why they are getting this triplet and it's of equal magnitude. Now you go to दूसरे न्यूक्लियस में, let us suppose it is acetone, एसीटोन के केस में CD3CO CD3, ठीक है, दोनों कार्बन ये इक्विवेलेंट है, so in this case we are having 3, so 2Ni+1, 2 into N, the nucleus are 3, I is equal to 1 plus 1, so in this case we are having 3 different nuclei, 3 different nuclei है CDC3, ये 3 nuclei है, so in this case we are having, so 2 into 3 into 1 is equal to 6 plus 1 is equal to 7, so we are having a septet, okay, so there will be a septet, 3 cases में, now 3 nuclei है हमारे पास, तो 3 nuclei में we are having a septet, इसमें इस केस में septet आएगा, ठीक है, and this pattern is really complex, ठीक है, ये आपको जो septet मिलेगा, so ये इसकी जो peaks आएंगी that will be again वो उसमें वो 9 लगेगा, ठीक है, और इसमें क्योंकि 3 spin states है एक न्यूक्लियस की, so ये पॉजिटिव है, ये परपेंडिकुलर है, और ये, ठीक है, न्यूक्लियस की जो स्पिन है, तो अब ये पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है और ये एंटी पैरेलल है, 3 स्पिन स्टेट्स, ठीक है, तो ये आप
जब आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनाओगे, ठीक है, सो तीनों आप एंड यू आर हैविंग 3 न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई की 3 स्पिन है और देन यू आर हैविंग 3 न्यूक्लियाई, तो उस केस में कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके? सभी की पैरेलल आ रही है, ठीक है, दूसरा सभी की एंटी पैरेलल आ रही है, तीनों की परपेंडिकुलर आ रही है स्पिन, ठीक है, एक की पैरेलल एक की परपेंडिकुलर, तो दैट विल मेक डिफरेंट सेट ऑफ फॉर्मुलेशंस आपके पास अलग-अलग बनेंगे, ठीक है, एंड इन दैट केस यू विल गेट ए सेपरेट। तो अगर आपने एक्सपेरिमेंट ड्यूटेरियम में किया या डीएमएसओ ड्यूटेरेटेड डीएमएसओ में किया, उसमें भी तीन न्यूक्लियाई CD3 SO CD3, ठीक है, इन दिस केस यू विल गेट ए सेपरेट, इस केस में भी सेपरेट आएगा आपके पास और एसीटोन के केस में भी सेपरेट आएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आप ड्यूटेरेटेड मिथेनॉल में करते हो, क्योंकि ओडी वाला तो नहीं आएगा, तो इस केस में भी कार्बन इज हैविंग 3 ड्यूटेरियम, उसमें भी N की वैल्यू 3 भरोगे आप, तो देन यू विल गेट ए सेपरेट, सो इन ईच केस यू विल बी गेटिंग ए सेपरेट, ठीक है, सो द कार्बन सिग्नल विल बी स्प्लिट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको C13 में जनरली ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाई वी आर गेटिंग ए ट्रिपलेट, आपका जो एक कार्बन है वो 3 सिग्नल क्यों दे रहा है और तीनों की इंटेंसिटी सेम क्यों है, ठीक है, और उसी तरह से जो एसीटोन में ड्यूटेरेटेड एसीटोन में जो आपके पास सिग्नल आ रहा है, व्हाई दैट सिग्नल इज सेपरेट, वो सेपरेट क्यों आ रहा है और इंटेंसिटी अलग-अलग क्यों आ रही है, ठीक है, सो दैट यू कैन ओनली अंडरस्टैंड थ्रू दिस, through their spin states or they are existing in the different spin states, and then from this formula to an I+1. So by applying this formula, so from here you can predict the spin of this nuclei. ठीक है, so go through this also. So we have discussed it, and then we'll move to 2D experiments. उसके बाद जो कार्बन के 2D experiments हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है, एंड देन टाइम परमिट देन विल डू सम कंबाइंड प्रॉब्लम्स, जो की कंबाइंड प्रॉब्लम्स होंगी उसको भी, मीन टाइम आई विल बी एक्टिवेटिंग your account, so don't submit your assignments to my email ID, so you need to submit these assignments to the Google Classroom, तो वो मैं आपको एक असाइनमेंट एक्टिवेट करके भेज दूंगा, सिर्फ उसमें असाइनमेंट एक्टिवेट करना है, oh sorry, so okay, so that's all from my side, you can mark your attendance and then maybe you are having next